Hello viewers, welcome to my channel Pots and Plants. Today we are going to talk about Justicia gandrusa variegata, commonly known as variegated willow leaf shrimp plant. Justicia gandrusa is a small, fast-growing branch shrub with attractive variegated lanceolate ascending to spreading green and creamy white leaves. This plant has spindly branches. This plant is native to India and Myanmar. Variegated willow leaf shrimp plant are easy to grow flowering plants that produce lightly scented blooms throughout the summer. This plant can be grown in pots or in ground. Variegated willow leaf shrimp plant can grow from part shade to full sun. The plant should be moved indoors or in a covered place during winters. Choose 6 to 8 inch round pot for this plant. When the plant becomes root bound, then shift it to a larger pot. This plant enjoys moist and well drained potting mix. Don't pot it in arid, wet or mucky soils. If you are making your own potting soil, you can use 40% garden soil, 20% compost, 20% sand or perlite and 20% coco peat. Water this plant only as necessary. Between each watering, the soil should be allowed to dry. This plant's watering needs will vary throughout the growing season, with the plant requiring the most water during spring and summer. Keep the soil moist in hot weather. Fertilize this plant thrice a year with a slow release NPK in granular form, which will break down slowly and will provide nutrients to this plant. Or you can fertilize this plant monthly with a handful of vermicompost to enhance the growth. Justicia gandrusa has medicinal benefits and its leaves are used in medicines for treatment of fever, headaches, muscle pains, respiratory disorders and digestive troubles. Prune this plant freely to maintain the desired size and shape. Pinching plant back stimulates dense bushy growth. Justicia plant can be propagated by cutting. When the plant grows taller, you can cut off a 6-inch section of the stem. Remove all but 2-3 leaves at the top of the stem. Dip the cutting end in the rooting hormone and place the cutting in well-draining soil mix. You can cover the pot with a loose clear plastic bag to maintain the humidity. Put the pot in indirect sunlight. Keep the soil moist. After a month or so, when new leaves emerge and roots have formed, you can remove the plastic bag and continue growing the new plant. The best time to propagate this plant is from March till August. Okay viewers, please like, share and subscribe to the channel. Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Pots and Plants. उम्मीद करता हूँ आप खैरोफियत से होंगे। आज मैं आपसे जस्टिसिया गैंड्रूसा, जिसको कॉमनली वेरीगेटेड विलो लीफ श्रिम्प प्लांट भी कहते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जस्टिसिया बहुत खूबसूरत पेरिनियल हाउस प्लांट है। इस प्लांट का सबसे खूबसूरत फीचर जो है इसकी फोलिएज है, जिसके लिए ग्रो किया जाता है। आप देखिए इस प्लांट के अंदर लाइट ग्रीन, कहीं पर डार्क ग्रीन और क्रीमिश वाइट का कम्बिनेशन है। इस प्लांट की जो ये स्टेम्स हैं ये बारीक और स्पिंडली किस्म की हैं और इस प्लांट के ऊपर समर में छोटे छोटे जो हैं वो खुशबूदार फूल भी आते हैं। जस्टिसिया इंडिया और म्यांमार का नेटिव प्लांट है। जस्टिसिया का प्लांट पार्ट शीट से लेकर फुल सन में ग्रो कर सकता है। आप जस्टिसिया के प्लांट को पॉट्स में भी लगा सकते हैं और आप इस प्लांट को ग्राउंड में भी लगाएं तो ये एक श्रब की शक्ल ले लेगा। देखिए मेरा ये प्लांट जो है इस वक्त तो है काफ़ी थोड़ी सी छोटी हाइट में है। मैंने इस प्लांट को इसलिए ये 5 से 6 इंच का पॉट दिया है। जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा तो मैं इस प्लांट को 8 से 10 इंच के पॉट में मूव कर दूंगा। जस्टिसिया के प्लांट को मॉइस्ट और वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स पसंद है। आप इस प्लांट को ऐसा पॉटिंग मिक्स मत दें जो कि बहुत ज़्यादा या तो वेट हो या बहुत ज़्यादा एरिड हो। और इस प्लांट के लिए अगर आप पॉटिंग मिक्स घर पे तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें 40% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 20% सैंड या परलाइट और 20% कोकोपीट यूज़ करें। जस्टिसिया के प्लांट की मॉडरेट वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है। आप इस प्लांट को ओवर वाटर मत करें, लेकिन सिर्फ इसको इतना पानी दें कि इस प्लांट की जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे, जो कि इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। जस्टिसिया प्लांट के लीव्स की मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और इस प्लांट के लीव्स डिफरेंट मेडिसिन में यूज होते हैं, जिनसे फीवर, हेडेक्स, मसल पेन्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव ट्रबल्स को क्योर किया जाता है। मार्च टू सितंबर इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन है। ग्रोइंग सीजन में आप इस प्लांट को किसी बैलेंस्ड एनपीके से जो कि ग्रेनुलर फॉर्म में हो उससे आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस पीरियड में आप इसको 3 दफ़ा सिर्फ फर्टिलाइज़ करें और अगर आप चाहें तो आप इसको मंथली बेस के ऊपर एक मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट से भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। मैंने इस 5 से 6 इंच के पॉट में जस्टिसिया के 8 से 10 पौधे लगाए थे इस प्लांट को थोड़ा सा बुशी दिखने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इस प्लांट को रेगुलरली टॉप से हल्का हल्का प्रून भी करें या इसको आप पिंच करें तो ये प्लांट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा सा बुशी होता जाएगा। जस्टिसिया के प्लांट को स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट किया जा सकता है। इस प्लांट की प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम मार्च टू सितंबर है। आप इस प्लांट की एक 6 इंच की एक कटिंग लेके आप उस कटिंग के तमाम जो नीचे के लीव्स हैं वो सारे के सारे उतार दें। सिर्फ टॉप के जो 2-3 लीव्स हैं वो आप रहने दें। कटिंग एंड को आप रूटिंग हार्मोन में डिप करके किसी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स में लगा दें और आपने पॉट को पॉली बैग से कवर करना है, वाइट पॉली बैग से। इस प्लांट को आपने बस हल्का स्लाइटली सा मॉइस्ट रखना है और उसको आप पॉट को शेड में रखें। महीने डेढ़ के बाद जब इस प्लांट के नए लीव्स आने शुरू हो जाएं
और इसकी रूट्स फॉर्म हो जाए तो आप पॉली बैग रिमूव कर दें और इस प्लांट को आप एक न्यू प्लांट के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।